Yes, Sonam, Divya. Voice is audible. Yes, Divya. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. आवाज आ रही है मेरी सुशांत? All of you. Yes, sir. आ रही है आवाज. Good, good, good. गुड आफ्टरनून सर. कैमरा ऑफ करिए सुशांत. गुड आफ्टरनून. सुशांत कैमरा ऑफ करिए. सर कैमरा ऑफ ही है मेरा. It is visible. Divya and all of you. पेज दिख रहा है आपको? यस सर. Yes, sir. चलिए जल्दी से रिप्लाई करो. और आज स्ट्रेंथ बढ़ी है ना. सुनिधि, आप भी कहाँ थे? आप तो पर ज्वाइन करते थे. आई थिंक इसमें दिव्या गुप्ता ने पार्टिसिपेट किया आज फर्स्ट डे, है ना? यस दिव्या गुप्ता. चलिए गुड. अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए. और चलिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ. संदीप, दिव्या, सोनम, सुनिधि, सुशांत, विकास, रोहन एंड विक्रांत. देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल जीरो अटेंडेंस है. लाइक भव्या, दिव्या शर्मा, दिव्या गुप्ता आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है. बहुत सारे स्टूडेंट है, चिराग, करण और गौरव ऑल्सो. तो प्लीज इट्स योर पर्सनल लॉस, है ना. वाई यू नॉट अटेंड योर क्लास ऑन रेगुलर बेसिस? चलिए स्टार्ट करते हैं. सोनम, वॉइस इज ऑडिबल? सोनम, आज मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, आज प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. संदीप, सोनम, आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा. देखो सबसे पहले हम करेंगे ओवरहेड्स. ओवरहेड मींस ऑल indirect expense is called overhead. What I'm saying, all indirect expense is called, wait a minute, संदीप और विक्रांत की साइड से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है. Students, overhead means overheads are also known as cost accounting terminology, और all indirect expense is called overhead, है ना. जितने भी indirect expense हैं, like indirect material, sorry, indirect material, indirect labor and other indirect expense is called overhead. Okay,
So this is the meaning of overhead. Okay, overhead means cost of indirect material, indirect labor, and other indirect expense is called overheads. Sorry, overhead is also called on cost burden or other than direct. Sonam, what is the meaning of direct labor? सर जो डायरेक्टली इंगेज होते हैं प्रोडक्शन में। Can you give the example of सर direct? जैसे मैन्युफैक्चरर और इनडायरेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली इंगेज नहीं होते, जैसे कि स्वेपर और Good. सच्ची। Yes, sweeper, cleaner, watchman, gardener, है ना? All these labor are indirect labor, है ना? चलिए, good. Then उसके बाद क्या है? Overhead expense these days are very significant in the total cost of production. जो overhead है ना, it's included in total cost of production. और overhead को हम और बोल सकते हैं, it's two things. Please write down. Cost calculation and control of cost. Please write down all of you. Cost calculation and control of cost. Calculation of cost means you can deeply and briefly analyze. If your cost is increased, definitely you can analyze what is the main cause your cost is increase. Okay, आपका cause बढ़ने का कारण क्या है? Maybe wastage, maybe rejection, है ना? Bad quality of raw material, all these things of increase of cost. देखो बहुत सारे कारण होते हैं कॉस्ट के बढ़ने से. आप मेटीरियल अच्छे से नहीं बना रहे, रिजेक्टेड मेटीरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर काम नहीं कर रही, आइडल टाइम इज आल्सो इंक्रीज, है ना? आइडल टाइम इज आल्सो इंक्रीज, है ना? ऑल दीज कॉज ऑफ control of cost. If your cost is increase, definitely if your cost is increase, definitely your profit is minimize. आपकी जितनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपका उतना ही प्रॉफिट क्या होता जाएगा? मिनिमाइज होता जाएगा. ठीक है? The overhead analysis classification or also it's depend on decision making. Minimization of overhead is very important to keep a watch on the cost of production and production planning. देखिए इसमें 2 पॉइंट और आ गई. Cost of production. Production cost means like labor, raw material, any other expense is called production cost, है ना? Wages of workers, जो भी आप वर्कर को wages पे कर रहे हो, सारी चीजें क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वर्कर्स, डे टू डे एक्सपेंस, कुछ भी. देन नेक्स्ट आता है आपका production planning. Definitely you make a plan regarding raw material, purchase of raw material, regarding payment of workers, है ना, payment of suppliers. If you not make a plan, definitely your production is not continue. देखो अगर जब तक आप प्लान नहीं कर रहे ना कि एडवांस में रॉ मटेरियल परचेज करना है, वर्कर को टाइम से वेजेस पे करनी है, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करनी है, तो आपकी कंपनी बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकती. प्लानिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? यस संदीप, प्लानिंग क्या है? Sir, what to do, how to do, and when to do. Yes, planning is just basically related to advance. What to do, when to do, how to do, where to do, है ना? कौन कब कहाँ कैसे किसी चीज को करेगा.
प्लानिंग इज रिलेटेड टू एडवांस, है ना। प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करते। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जाम, थर्ड सेम एग्जाम, इफ यू नॉट मेक ए प्लान रिगार्डिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए प्लान नहीं करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज आपको कितनी स्टडी करनी है, क्या एनालाइज करना है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड है आपका फंक्शनल ओवरहेड, मींस फंक्शन वाइज ओवरहेड, फंक्शन वाइज ओवरहेड, बिहेवियर वाइज ओवरहेड, एलिमेंट वाइज ओवरहेड एंड कंट्रोल वाइज ओवरहेड। ठीक है, अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, फंक्शन वाइज मींस फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। राइट डाउन ऑल ऑफ यू, आप लिख भी सकते हो बच्चा। फंक्शन वाइज मींस फैक्ट्री ओवरहेड, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। नेक्स्ट है बिहेवियर वाइज, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट वाइज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। नेक्स्ट है कंट्रोल वाइज, कंट्रोलेबल ओवरहेड एंड अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सोनम, आज कोई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी डेफिनेटली, है ना। यस सर, क्लियर है हाँ, वॉइस। आज वाईफाई बैंडविड्थ यूज कर रहा हूँ बच्चा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। फैक्ट्री ओवरहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री ओवरहेड मींस also known as works overhead, production overhead, manufacturing overhead. Factory overhead is also called, please write down all of you, works overhead, production overhead, manufacturing overhead. So as the name of indicate, these expenses are incurred at the place of production, है ना। Production overhead are the invisible part in the production, like nails in the shoes, आप जानते हो ना, adhesive in the book binding, थ्रेड इन बुक बाइंडिंग, है ना। ये सारी चीजें क्या है आपकी विजिबल होती हैं, कुछ चीजें इनविजिबल होती हैं, है ना। जैसे आपका ग्लू हो गया, है ना, लुब्रिकेंट्स वगैरह हो गए, दिखाई नहीं देते कई बार, ठीक है। बट इट्स लाइक एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, लाइक फैक्ट्री पावर, लुब्रिकेंट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस, salary of foreman, supervisor, all these example of factory overhead. Depreciation, anybody can tell me? दिव्या, आप बता सकते हो what is the meaning of depreciation? दिव्या, what is the meaning of depreciation?
ओके दिव्या, वेट ए मिनट, में करता हूँ। यस दिव्या, मैंने आपको अब अनम्यूट कर दिया है, बोलो। यस दिव्या। दिव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। इफ माय वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज रिप्लाई मी। ओके ध्रुव, unmute yourself. Yes, sir. What is the meaning of depreciation, Dhruv? सर पता नहीं। नहीं पता? पढ़ा ही नहीं नहीं। आपने कभी? Sonam, please explain what is the meaning of depreciation of plant and machinery. What is the meaning of depreciation? Sir, the value of assets due to some wear and tear. गुड। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव सुनिए, कोई बात नहीं, नहीं पता तो वेरी गुड सोनम, वेरी वेरी गुड बच्चा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को ईयर बाय ईयर डिक्रीज करता है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एवरी ईयर। आज आपने कोई बाइक खरीदी, भले ही इफ यू आर यूजिंग और नॉट, नेक्स्ट टाइम योर प्रोडक्ट वैल्यू इज डिक्रीज। अगले साल आपके प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, चाहे आपने उसको चलाया या नहीं चलाया। इंश्योरेंस कॉस्ट इज ऑल्सो डिक्रीज। क्यों हो रहा सोनम इंश्योरेंस डिक्रीज ऑल्सो? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी, क्योंकि सर उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अरे क्या बोल रहे हो बच्चा? ईयर बाय ईयर Sir, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी, घटेगी बच्चा? decrease. डिक्रीज होगी ना। आज प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगी, है ना? नहीं रहेगी ना। This is the depreciation, means every year your product value is decrease, your product cost is decrease year by year. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आप जानती हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। ओवरहेड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस। ओवरहेड को हम खर्चे ही बोलते हैं। All those expense which are concerned with maintenance and running the administration of the organization. These are mainly concerned with policies, planning, control, maintenance of accounts. ऑफिस ओवरहेड्स के एग्जांपल हैं ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस स्टाफ, ओके, डायरेक्टर फीस, कुछ भी हो सकता है, लाइटिंग चार्ज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल दीज एग्जांपल ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड मींस, संदीप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग? सर किसी सामान को बेचना सर। तो उसके क्या खर्चे हो सकते हैं उससे रिलेटेड? हाउ कैन यू सेल योर प्रोडक्ट? आपके पास एक पेन है, आप कैसे सेल करोगे? विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? सर डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट सर। एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड। हाँ हाँ, एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। और देखो, एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंस हुआ ना, हाँ, वो उसका एग्जांपल है, गुड। सेलिंग ओवरहेड्स में क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट। देखो, एडवर्टीजमेंट कोई भी हो सकती है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, बैनर्स, लीफलेट, कैटलॉग्स, है ना। अब उसके लिए आपका जो सेल्समैन है उसको भी सैलरी पे करोगे। सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहां से आएगी बेटा? वो ट्रांसपोर्टेशन सर कॉस्ट जब में। सेलिंग ओवरहेड्स में ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू सेलिंग एक्सपेंस बेटा। एडवर्टीजमेंट, सैलरीज ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है, फ्री गिफ्ट, आफ्टर सेल सर्विस, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, कॉस्ट ऑफ पेपर्स, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बेटा, वो अलग। आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिंग ओवरहेड, जो सिर्फ सेल से रिलेटेड है, नॉट। अब आप तो ऐसे कह दोगे पैकिंग एक्सपेंस, नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जो आप संदीप बोल रहे हो वो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? डिस्ट्रीब्यूशन मींस,
सर जब मैन्युफैक्चरर अपने किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर एंड तक पहुंचाता है और उसके बीच में जो खर्चे आते हैं उसे यस यस distribution यस, वेरी बोलते राइट. हैं सर। Distribution overheads, all those expense which are incurred by the producer for placing the goods from place of production to the place of consumption. Good. जो एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्शन लाइन से उस प्रोडक्ट को कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाता है, मींस जो उसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लाइक प्लेस यूटिलिटी होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन लाइन में उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी यूटिलिटी कहां पर है? कंज्यूमर के पास. और इसमें क्या हो सकता है आपके एक्सपेंस या एग्जांपल? पैकिंग कॉस्ट, संदीप इसमें आएगा. पैकिंग कॉस्ट, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, है ना, इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन. आपका कोई भी व्हीकल हो सकता है, लाइक इट्स योर पर्सनल व्हीकल आल्सो. ठीक है. ऑल दीज एक्सपेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, all these overheads are called distribution overhead. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर. इसमें फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड. सोनम प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड. कैन यू गिव द एग्जांपल? Sir, fixed overhead. Can you give the example? Sir, Fixed land and building, plant and yes, labor तो variable होगा और plant and machinery fixed. labor is a variable factor, Variable. है ना? Yes sir. और If yes you sir, और plant and machinery fixed. good. देखिए, labor is also a variable factor. If you increase and decrease your production, definitely you can increase the number of employee, number of workers. आप 10 से 100 पीसेस करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ लेबर्स को इंक्रीज करना होगा. दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे शॉर्ट रन में अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली यू नॉट परचेज एनी लैंड, एनी मशीनरी, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली. आप 10-20 करोड़ की, 2-4 करोड़ की मशीनरी और लैंड परचेज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में. फिक्स फैक्टर क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट. आप कहेंगे जी नहीं नहीं हम तो खरीदना चाहते हैं, जैसे रेंट, आपने कोई रूम रेंट पे लिया और आपने अपने गांव चले गए और 1 महीने बाद आप आओगे तो चाहे आप उसमें रहो या ना रहो, संदीप पे करोगे नहीं करोगे? पे करेंगे सर. बिल्कुल. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, कि भाई मुझे पे करना है. ये जब मैंने रेंट पे ले रखा, चाहे मैं उसमें रहूं या ना रहूं, एक फिक्स्ड बिल आता है ना हमेशा घर का, या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वाटर बिल है, कुछ भी, चाहे उसको यूज करो या ना करो, है ना. डेप्रिसिएशन, जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू घटेगी ही घटेगी इफ यू यूज द प्रोडक्ट और नॉट. चाहे आप अपने स्कूटर व्हीकल को यूज करें या ना करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी डिक्रीज होगी ही होगी. बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट की, तो रेंट इसका एग्जांपल है कि भले ही आप उसमें रहे ना रहे, आपको पे करना है. और वेरिएबल इज जस्ट लाइक लेबर, एज पर सिचुएशन, एज पर प्रोडक्शन. आपकी लेबर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज करनी ही पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, है ना. तो फिक्स ओवरहेड होता है, these overhead remain unaffected by the change in volume of output up to a certain limit. ठीक है.
these expense remain fixed in total amount with increase or decrease in volume of output. Okay, for example of fixed overhead के example आप क्या कह सकते हो? Rent of factory building, insurance, salary of permanent staff, all these example of fixed overhead. Next है variable overhead or variable cost as per situation, as per production. If you increase or decrease your production or product, definitely you can increase or decrease the number of employee. This is called variable cost. It means changeable. Variable cost means changeable or fixed cost remain constant. Variable overhead are those which change with the change in volume of output. Variable overhead are those which change with the change in volume of output, and decrease in output result into decrease in total variable cost. For example, power, repair and maintenance, idle time, delivery expense, indirect material, indirect labor. All these example of variable cost. Next is सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. दीज आर आल्सो नोन एज मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. द कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल्स बिकॉज दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल. एग्जाम्पल हो सकते हैं सैलरी पर मंथ, फिक्स्ड सैलरी पर मंथ आपका जो स्टाफ है. ठीक है. टेलीफोन चार्जेस इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. एज ए टेलीफोन चार्ज इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, है ना. लाइक रेंटल पर मंथ, है ना, वही होता है ना, रेंटल पर मंथ. एंड वेरिएबल पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉल्स. ठीक है, पर मंथ तो रेंटल आएगा ही आएगा, और नंबर ऑफ कॉल्स आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो भी वो चेंज होगा. फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ. दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. समझ में आया नहीं आया बच्चा? यस रोहन, रोहन नहीं, यस विकास सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. विकास सिंह अनम्यूट योर. विकास समझ में आया बेटा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट मींस कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट ये सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल देखो, वेरिएबल जिसमें चेंज कर सकते हैं और फिक्स्ड जो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहेगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, रेंट लैंड सब एंड. हाँ, अगर आप प्रोडक्शन चेंज बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन ही बिल्डिंग को बढ़ा देंगे, दूसरे दिन ही लैंड परचेज कर लेंगे, दूसरे दिन ही करोड़ों रुपए की मशीनरी परचेज कर लेंगे. नहीं कर सकते. अगर आपको लॉन्ग रन बिजनेस करना है 10 20 50 सालों के लिए, तो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वर्कर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो. यस दीपांशु प्रजापति जी. दीपांशु प्रजापति जी. यस सर. प्लीज एक्सप्लेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स. R&D एक्सपेंस क्या होते हैं? रिसर्च एंड ओवरहेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स. एनी आइडिया व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट? नो सर. रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करते हैं बच्चा? सर उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए. यस, गुड, बिल्कुल. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मींस न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन, न्यू इनोवेशंस, न्यू इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, है ना. इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इंप्रूव ऑफ बेटर क्वालिटी. इसलिए तो हमारे लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो उसके एक्सपेंस क्या हो सकते हैं बच्चा? R&D कॉस्ट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चे आए हैं. कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च, रिसर्च में जो हमने मटेरियल यूज किया.
cost of material used in research, salary paid to research and development staff, cost of test conducted, जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए, टेस्ट एंड ट्रायल आल्सो, all these expense of research and development overhead. ठीक है जी। अब मुझे कौन बताएगा एज पर एलिमेंट, indirect material, indirect labor, indirect other expense, only you can give the example, explain नहीं करना, example देना है। wait a minute, सुनिधि unmute yourself। सुनिधि बताइए, इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल दीजिए, प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ सुनिधि। Sir, indirect material. ओनली गिव द एग्जांपल। Okay, sir. सर सीमेंट जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। हाँ क्या बोल रहे हो बच्चा? लाइक वुड टू फर्नीचर, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट Yes, मटेरियल? सर वुड तो डायरेक्ट मटेरियल है। वुड टू फर्नीचर, ओके ठीक है। और थ्रेड इन ड्रेस क्या हुआ? थ्रेड इन सर वो ड्रेस इनडायरेक्ट है। हुआ ना? यस सर। लुब्रिकेंट, ग्रीस, ऑयल, एक मशीन के लिए ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट है ना? मटेरियल है। खर्चा तो है पर वो इनडायरेक्ट है, दिखाई नहीं देता। यस सर। वुड से डायरेक्ट आप फर्नीचर बना रहे हो तो वो डायरेक्ट है, क्योंकि उस वुड को हम फर्नीचर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। थ्रेड एंड ड्रेस आपको दिखाई नहीं देगी, इनडायरेक्ट है, बट वो एक काम तो कर ही रहा है। जैसे ग्लू इन बुक बाइंडिंग है ना, दिखाई दे रही है आपको, यस सर। बट वो इनडायरेक्ट नो कॉस्ट तो फिर भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल तो है ना। यस सर। इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट लेबर का एग्जांपल दीजिए। हु इज डायरेक्ट लेबर? सर जैसे आपने फर्नीचर का बोला। डायरेक्ट लेबर बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। डायरेक्ट हाँ लेबर, तो सर जो वो बनाएगा फर्नीचर वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। गार्ड, चौकीदार हो सकता है? नो सर। स्वीपर, नो सर। टाइम कीपर? नो सर। ओके गुड। डायरेक्ट लेबर मींस दोज आर एंगेज इन प्रोडक्शन, ओनली एंड ओनली वर्कर्स। बिल्कुल ठीक बोला, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको कन्वर्ट कर रहा है। अदर थिंग्स आर इनडायरेक्ट है ना, बाकी चीजें इनडायरेक्ट हैं। यस सर। ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर लाइक वॉचमैन, स्वीपर, क्लीनर, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, गार्डनर, चौकीदार। इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस कौन एक्सप्लेन करेगा? वेरी गुड सुनीति, वेरी वेरी गुड। मुझे बताएगा, म्यूट कर लो। जितेंद्र बाबू, जितेंद्र जी, अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर जितेंद्र। मिस्टर जितेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ। मिस्टर जितेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बोल ही नहीं सकते जितेंद्र तो ना, फोन करा लो कितने इनसे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। चलो सोनम, इनडायरेक्ट मटेरियल इज कॉल्ड? इनडायरेक्ट मटेरियल इज कॉल्ड सोनम? क्या सर एग्जाम्पल बताना है? सर इनडायरेक्ट मटेरियल थ्रेड एंड नीडल इन अ क्लॉथ। एग्जाम्पल। सॉरी, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। सर उसमें होगा एडवर्टीजमेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एंड चार्जेस एक्सपेंसेस। Okay, office overhead, selling overhead, R&D overhead, all these example of indirect
अदर एक्सपेंस बोल सकते हैं ना? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सोनम, आप बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक और बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप, कंटिन्यू ऐसे ही लगे रहिए। और जो स्टूडेंट मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, सीरियसली मैं इंटरनल मार्क्स तो बिल्कुल ही मुझसे उम्मीद ना करें। और जो रिप्लाई कर रहा ना थोड़ा भी, तो प्लीज आप एक्सपेक्टेशन रखें मुझसे। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, और प्लीज बी एक्टिव, एनर्जेटिक और अटेंड ऑन रेगुलर बेसिस। सर यस यस सुनिधि। एक बार नोट्स प्रोवाइड कर दो, बुक में ना वो सब मिल नहीं रहा है टॉपिक एग्जैक्ट। क्या कह रहे हैं आप? नोट्स प्रोवाइड कर ओके दो ओके, सर। टुमारो आई विल सेंड यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके सर। नो इशू। ठीक है, चलो, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आप लोगों को, जो भी अभी थोड़ा सा कराया है? सर हाँ जी बोलिए सर। सर फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड में तो बताने हाँ, बहुत एग्जाम्पल, ज्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा डाउट है संदीप। सर। नहीं, डाउट मत रखिए यस बच्चा। फैक्ट्री और ऑफिस देखो है एक, फैक्ट्री क्या है, ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस उसके अंदर आता है। बट फैक्ट्री में हम प्लांट एंड मशीनरी इट्स इंक्लूड, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, टेलीफोन चार्जेस फैक्ट्री के अंदर भी आएगा और ऑफिस के अंदर भी। आपको क्यों? फैक्ट्री के अंदर ही ऑफिस होता है बच्चा, होता नहीं होता? यस सर होता फैक्ट्री है। ओवरहेड क्या है बच्चा? प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। It means place of production. What I'm saying, production factory overhead means place of production. For example, factory power, depreciation of plant and machinery, insurance of factory, repair and maintenance, rent, taxes, telephone charges of factory expense, salary for foreman. All these example of factory overhead. और office का meaning है all those expense which are concerned with maintaining and running the administration of the organization. Administration होता है ना जो, उससे related जो expense होते हैं। Factory means production house, office overhead means maintenance and running the administration. Administrative block देखा आपने अपने कॉलेज के अंदर, administrative blocks। पूरा कॉलेज हो गया यस जस्ट सर। लाइक, पूरा कॉलेज जस्ट लाइक ए फैक्ट्री समझो। एक्लॉन पूरा कॉलेज जस्ट लाइक ए फैक्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो आप देखते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइब्रेरी, दिस इज कॉल्ड ऑफिस, दिस इज कॉल्ड ऑफिस। समझे अब? आया यस बच्चा सर समझ? समझ गया। हाँ, बट ऑफिस में थोड़े से एक्सपेंस